Class 9th. Today we have a story, The Little Girl. Its writer is Catherine Mansfield. This is the story of a little girl and her feelings towards her father. Let's read and know about the little girl and her feelings. So let's start with the difficult word of the very first paragraph. The first difficult word is upset. Its meaning is sad, feelings, emotions, figure, a form, avoid, keep away, casual, informal, respond, answer, faint, unclear, relief, comfort, slippers, a type of shoe, terrify, frighten, stutter, stammer. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning, before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if the paper is out there. Bring me my slippers." जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहानी एक छोटी लड़की की है। ये छोटी लड़की अपने पिता से बहुत डरती थी और उनके पास जाना पसंद नहीं करती थी। हर सुबह बाहर जाने से पहले उसके पिता उसके कमरे में आते, उसे प्यार करते, जिसके लिए वो उन्हें रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय कह के। के साथ साथ उनका जाना उसके मन को शांत करता था। जैसे ही उनको ले जाने वाली गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती थी सड़क के आखिर तक, उसे खुशी मिलती थी। शाम को जब उसके पिता वापस घर आते तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और वो तेज आने वाली आवाज़ें सुनती रहती। "मेरे लिए चाय लेके आना। क्या आज अखबार नहीं आया? जाओ देखो वहाँ पेपर है क्या? मेरे शूज़ लेके आना।" ये सब वो लड़की सुनती रहती। सेकंड पैराग्राफ, Cassia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By the time he had his spectacles on and looked at her over them, in a way that was terrifying to the girl. उस बच्चे की मदर उसे नीचे बुलाती है। बच्ची का नाम कैसिया है। वो उन्हें कहती है कि तुम नीचे आओ और अपने पिता के शूज़ उतार दो। वो छोटी लड़की धीरे से सीढ़ियों से नीचे आती है, बड़ा हॉल पार करके कमरे में पहुंचती है। तब तक उसके पिता चश्मा पहन लेते हैं और उस चश्मे से उसकी तरफ देखते हैं, जो कि उस लड़की को डराने वाला था। "Well, Cassia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" उसे कहते हैं, "जल्दी से इन जूतों को निकालो और बाहर रखो। क्या आप आज एक अच्छी लड़की बने थे?" "I don't know, father." "You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to doctor." वो छोटी बच्ची अपने पिता से डरते हुए, टूटे हुए शब्दों में बात करती है, जिसके लिए उसे पिता कहते हैं कि अगर तुम इस तरह रुक रुक कर बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। Difficult words for paragraph number 3 are
wretched, unhappy, brink, edge, suicide, to kill oneself, yawned, open mouth wide to relax. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so thrashed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. वो कभी ऐसे स्टैमर नहीं करती, रुक रुक कर नहीं बोलती. उसने ये आदत अब छोड़ दी है. ये सिर्फ अपने पिता के सामने है, क्योंकि वहाँ वो बहुत कोशिश करती है शब्दों को ठीक से कहने की. उसके पिता फिर उसे कहते हैं कि ये सब क्या है, तुम इस चीज़ का, इस अनहैप्पी चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना. तुम ध्यान रखना कहीं ये बच्चा सुसाइड करने की कोशिश नहीं करे. कैसिया, जाओ इस चाय के कप को लो और उस टेबल पर ध्यान से रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब यहाँ कैज़िया की बात होती है. कैज़िया के लिए उसके पिता जो हैं वो बहुत बड़ी फिगर हैं. उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली जब वो अपना माउथ उबासी लेने के लिए, जम्हाई लेने के लिए खोलते हैं तो वो बहुत बड़ा दिखता है. कैज़िया को लगता है कि उसके पिता के बारे में सोचना जैसे किसी एक डेविल के बारे में, एक जाइंट के बारे में सोचना है. The difficult words for paragraph number 4 are stretched out, lay comfortably, snoring, breathe noisily while sleeping. Stretch, pulling your body after waking up, stare, looking continuously. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे को दोपहर में ग्रैंडमदर उस छोटी बच्ची को नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती है ताकि वो अपने माता और पिता से बात कर सके. पर लड़की हमेशा देखती है कि जब वो नीचे जाती है तो उसकी माँ कुछ पढ़ रही होती है और उसके पिता सोफे पर लेटकर आराम से सो रहे होते हैं. उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता है और पाँव सामने रखी कुशन्स पे. वो आराम से सो रहे होते हैं, स्नोर करते मतलब खराटे लेते हुए. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. वो ध्यान से देखती रहती है, ग्रेवली ध्यान से देखती रहती है अपने पिता को जब तक वो जगते नहीं हैं और अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं करते हैं, और फिर उससे पूछते हैं टाइम क्या हुआ है. Don't stare, Cassia. You look like a little brown owl. लगातार ऐसे घूर के मत देखो कैसिया, तुम तो एक छोटे ब्राउन आउल की तरह लग रहे हो. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन कैज़िया घर होती है क्योंकि उसे कोल्ड की प्रॉब्लम होती है. उस समय उसकी ग्रैंडमदर उसे समझाती है कि अगले हफ्ते उसके पिता का बर्थडे आने वाला है और उसके लिए कैज़िया को एक येलो सिल्क के पीस में से एक छोटी सी कुशन बनानी चाहिए. द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर द पैराग्राफ नंबर 5 आर laboriously, with a lot of hard work, stitched, sewed, wandered, roamed,
scraps, waste, sewed, stitched. Laboriously, with the double cotton, the girl stitched three sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. बहुत मेहनत करके उस बच्चे ने डबल कॉटन से उस कवर की तीनों साइड्स स्टिच की, पर अब उसमें क्या फिल किया जाए ये उसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। उसकी ग्रैंडमदर बाहर गार्डन में काम कर रही थी। वो इधर उधर गई और फिर वो माँ के बेडरूम में पहुँची कुछ स्क्रैप्स ढूंढने के लिए, कुछ वेस्ट ढूंढने के लिए जो उस कुशन कवर में फिल की जा सके। फिर उसने देखा कि वहाँ पर बेडरूम टेबल पर कुछ शीट्स रखी हैं अच्छे पेपर की। उस छोटी लड़की ने वो सब पेपर लिए, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर और उस कवर में भर दिया। बाद में उसकी चौथी साइड को भी सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants were questioned. Finally, mother came into Cassia's room. उस दिन घर में बहुत शोरगुल था क्योंकि पापा की पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच गुम हो गई थी। सभी रूम्स में ढूंढा गया, सभी सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया और फाइनली माँ कैजिया के कमरे में आई। कैजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। मुझे लगता है तुमने हमारे रूम की टेबल पे कुछ पेपर्स तो नहीं देखे? ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उन सबको फाड़ दिया मेरे एक सरप्राइज़ के लिए। वॉट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी माँ चिल्लाई और उसे कहा, इसी मोमेंट पे तुम नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ। पैराग्राफ नंबर 6। Pacing to and fro, moving here and there, sharply. Here it means angrily. Damn thing means cursed object. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसे नीचे खींच कर लाया गया जहाँ उसके पापा यहाँ वहाँ घूम रहे थे, अपने हाथ अपने पीछे किए हुए। वेल, ही सेड शार्पली। अच्छा, उन्होंने गुस्से से कहा। मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? वो रुके और उन्होंने बच्चे की तरफ गुस्से से देखा और उससे पूछा, क्या ये तुमने किया है? नो, शी विस्पर्ड। उस बच्चे ने धीरे से कहा, नहीं। मदर, गो अप to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. वो बच्चे की माँ से कहते हैं कि ऊपर जाओ और इसके कमरे से वो जो स्टूपिड चीज़ है उसे नीचे लेके आओ और बच्चे को बिस्तर पर लिटा देना। पैराग्राफ नंबर 7। Shadowed means closed, dark. Screamed, cry. Bedclothes, the sheet that is used to cover. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. उस कमरे में रात को रोते हुए वो बच्ची फर्श में परछाइयों से बनने वाले अलग अलग पैटर्न्स को देख रही थी। उसी वक्त उसके पापा उसके कमरे में आए। उनके हाथ में एक छड़ी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। मैं तुम्हारी इस बात के लिए पिटाई करूँगा, उन्होंने कहा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड।
hiding under the bedclothes. He pulled them aside. अपने आप को बेड के कपड़ों के नीचे छिपाते हुए उस बच्ची ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उसके पिता ने उन कपड़ों को एक तरफ खींच दिया। Sit up, he ordered, and hold your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler, but little pink palms. उठकर बैठो, अपने हाथ आगे करो। तुम्हें हमेशा के लिए और आगे के लिए एक लेसन सिखाना ज़रूरी है। उन चीज़ों को मत छुओ जो तुम्हारी नहीं हैं। पर यह तो आपके बर्थडे के लिए था, बच्ची ने कहा, और इतनी देर में पिता की छड़ी उस छोटी बच्ची के गुलाबी हाथों पर पड़ गई। पैराग्राफ नंबर 8. The difficult words are wrapped, covered, rocked, sway to and fro, clung, to hold tightly, upset, sad. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. बहुत देर बाद ग्रैंडमदर ने जब उसे शॉल से ढक दिया और उसकी मूविंग चेयर पर उसे बैठाया तो वह बच्ची ज़ोर से दादी माँ के गले लग गई। What did God make fathers for? She sobbed. उसने रोते हुए कहा, पापा को किस लिए बनाया भगवान ने? Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. उस बच्ची की दादी माँ ने उससे कहा कि इस हैंकी से तुम अपना नोज साफ करो और जाकर सो जाओ। तुम्हें सुबह तक ये सब भूल जाएगा। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे पिता से बात करने की, पर आज रात वो कुछ भी नहीं सुन पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे। वो बच्चा भी इस बात को कभी नहीं भूला। अगली बार जब वो अपने पिता को देखती है तो अपने दोनों हाथ डर से अपने पीछे कर लेती है और उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 9. The difficult words here are fence, the barrier used to secure an area. Tag is the name of a game. Hose, a flexible tube of rubber used to spray water. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing at all. उस बच्ची के अगले घर में एक फैमिली रहती थी, मैकडॉनल्ड्स की। यहाँ मैकडॉनल्ड्स फैमिली का सरनेम है और उस फैमिली में 5 बच्चे थे। उस बच्ची ने देखा वहाँ जो बाउंड्री पे फेंस, उसके बीच से उस बच्ची ने देखा कि वो बच्चे अपने पिता के साथ टैग गेम खेल रहे थे। उनके फादर माओ नाम के बच्चे को अपने कंधे पे उठाए हुए थे और बाकी दोनों लड़कियां उनकी कोट की पॉकेट को पकड़े हुए उनके चारों तरफ घूम रही थी। उनकी हंसी चारों तरफ सुनाई दे रही थी और एक बार दोनों लड़के एक पानी को डालने वाली पाइप से अपने पिता पर पानी डाल रहे थे और पिता उन्हें बच्चों को हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she
and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. उस दिन उस बच्ची ने सोचा कि पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं और अचानक से एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। उसकी माँ और ग्रैंड मदर दोनों ही हॉस्पिटल चले गए। वो लड़की घर पर अकेली थी उनकी कुक एलिस के साथ में। सारा दिन तो सब ठीक था, बट रात को जब एलिस उसे सुलाने गई तो अचानक से वो प्यारी बच्ची डर गई। पैराग्राफ नंबर 10। The difficult words here are nightmare, bad dream, granny, grandmother, whispery with low sounds. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. वो छोटी बच्ची कहती है, क्या होगा अगर मुझे रात को कोई ख़राब सपना आया तो? क्योंकि मुझे ज़्यादातर ख़राब सपने दिखते हैं और जब ऐसा होता है तो मुझे ग्रैनी अपने बेड पे अपने साथ ले जाती हैं। मैं डार्क में ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि इसमें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तुम आराम से सो जाओ प्यारे बच्चे, एलिस ने कहा और उसकी सॉक्स निकाल दी। चिल्लाना मत और अपने पिता को मत जगाना। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling with dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. पर उस बच्चे को फिर से वही बुरा सपना आया। उसने देखा कि एक बुच्चर चाकू लेकर और रस्सी लेकर उसकी तरफ आ रहा है और वो उसके बहुत पास आ रहा है। उसकी वो डराने वाली स्माइल जिसके कारण से वो लड़की कहीं हिल भी नहीं पा रही है, वो अपनी जगह पर खड़ी रह गई और ज़ोर से रोते हुए चिल्ला रही है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। वो डर के कारण कांपने लगती है और तभी उसने देखा कि उसके पिता उसके बेड की साइड पर एक कैंडल अपने हाथ में लिए खड़े हैं और उन्होंने कहा, क्या हुआ है बच्चे? पैराग्राफ नंबर 11। द डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर पैसेज, स्मॉल वे, tucked up, covered up nicely in bed, snuggled, move into a warm and comfortable position. Oh, a butcher? A knife? I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held lightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अरे वो बुच्चर, वो चाकू, तुम्हें ग्रैनी चाहिए। उन्होंने कैंडल को बंद किया, नीचे झुके और उस बच्चे को अपने हाथों में लेकर उस छोटे रास्ते से बड़े बेडरूम की तरफ चल दिए। उनके बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था। हाफ स्मोक की हुई सिगार उनके रीडिंग टेबल के पास पड़ी थी।
उन्होंने उस पेपर को एक तरफ रखा, उस सिगार को फायर प्लेस में डाल दिया और उस बच्चे को बहुत प्यार से कवर करके बेड में सुला दिया और फिर वो खुद भी उसके पास लेट गए। वो आधी ही सोई थी जब उसे फिर से उस बुच्चर की स्माइल दिखाई दी। वो बच्ची अपने पिता के और पास आई और उनको और टाइटली शर्ट को पकड़कर सो गई। अब अंधेरा उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था, वो आराम से सो रही थी। उसके पिता ने कहा, अपने पाँव को मेरी लेग्स के पास रब करके वार्म कर लो। पैराग्राफ नंबर 12। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. उस बच्चे के पिता उससे पहले सो गए और उस बच्चे के मन में कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। उसने सोचा कि उसके पिता इतने भी बड़े नहीं हैं और उसके पिता का कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है। वो दादी माँ से थोड़े हार्ड हैं, पर यह हार्डनेस इतनी भी बुरी नहीं है। हर दिन उन्हें कितना काम करना पड़ता है और वो कितने थक जाते हैं मिस्टर मैकडॉनल्ड बनने के लिए। उसने पिता की बहुत सारी अच्छी लिखी हुई पेजेस को फाड़ दिया था और उसे याद करके उसे थोड़ा सा डर लगा। उसने एक लंबी सांस ली। What's the matter? asked her father. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. उसके पिता ने तभी उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तुम्हें कोई फिर से बुरा सपना आया? बच्ची ने जवाब दिया, ओह पापा, मेरा सर आपके दिल के पास था और मैं आपके दिल की धड़कन सुन पा रही थी और मुझे लगा कि आपका कितना बड़ा दिल है प्यारे पापा, और ये कहकर कहानी ख़त्म होती है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल।